The past perfect tense, also called the pluperfect, indicates that an action was completed, finished or perfected at some point in the past before something else happened. मतलब पास्ट में आप जब जा रहे हो, आपने पास्ट की कोई कहानी शुरू की बतानी, तो कोई तो कहानी, कोई तो एक हिस्सा, कोई तो एक एक्शन कंप्लीट हुआ होगा दूसरा स्टार्ट होने के पहले. तो वो जो हिस्सा कंप्लीट हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखोगे. यू विल से इन द पास्ट परफेक्ट वे. दिस टेंस इज फॉर्म विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू हैव, दैट इज ऑलवेज हैड, plus the past participle of the verb, that is either regular or irregular in form. आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम ed लगाते हैं, that is past participle. तो past perfect में भी हम past participle लगाएंगे, that is ed form. और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम have और has लगाते हैं, यहाँ सिर्फ had लगाना है. To have form is always had with persons, whether it is first person, second person, third person, and with numbers, whether it is singular or plural. So easy to express your past life, past incidents. Now, move to the session again. This is the forming the past perfect. How will you form the past perfect sentences? First, affirmative. I had decided. I had decided. I is your first person, right? And we have used the word had. To have हमेशा had में रहेगा. And this is the third form of past participle of the verb decide. Always remember, यहाँ कोई भी चेंज आपको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर. इट इज ऑलवेज हैड एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. नेगेटिव, यू विल हैव टू ऐड नॉट. ऑब्वियसली आई हैडंट डिसाइडेड. हैडंट इज अ कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हैड नॉट. हैड नॉट को हमने हैडंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, हैडंट डिसाइडेड. इंट्रोगेटिव, हैड आई डिसाइडेड. आपको पता है जो आपका ऑक्सिलरी है वो पहले आ जाता है जब आप इंट्रोगेटिव या फिर आप क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंसेस बनाते हो. तो हैड आई डिसाइडेड और साथ में क्वेश्चन मार्क. बहुत ही सिंपल है पास्ट परफेक्ट फॉर्म करना. नाउ, just is used with a past perfect to refer to an event that was only a short time earlier than before now. Just arrived, just went, just completed. ये जो है बहुत ही यूज होता है. जस्ट वर्ड हम काफी यूज करते हैं. द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, right? When I arrived at the station. See, here the entire incident is your past. You are saying someone about your past. The train had just left when I arrived at the station. मैं पहुंचा और ट्रेन तुरंत छूटी, तो just left. तो just हम यूज करते हैं past perfect में. She had just left the room when the police arrived. पुलिस के आने के थोड़े पहले ही वो रूम छोड़ के गई. She had just left the room. तो इस तरह से आप देख रहे हो पास्ट परफेक्ट में जस्ट का यूज हो रहा है. नाउ, यूजिंग कंट्रैक्शंस. कैसे हम कंट्रैक्शंस यूज करें? I had, तो I apostrophe D, I had. You had, you apostrophe D. See, apostrophe कहाँ लगाना है? You will have to be very careful. It had, it apostrophe D. We had, we apostrophe D. They had, they apostrophe D. सबसे अच्छी बात आप यहाँ पर क्या है, और एक चीज जो आपको समझ में आ रही है, I is the first person, आपने had लगाया. You is the second person, आपने had लगाया. He is the third person singular, आपने had लगाया. It is third person singular, आपने had लगाया. We plural, फिर भी आपने had लगाया. They plural, फिर भी आप had ही लगा रहे हो. See, there is no change.
आप आराम से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हो बिना किसी डर के कि कहीं कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए. So it's better to narrate your incidents, write it and say it in past form. This is always we advise the students. Now for the negative version, जो had है उसके साथ हम apostrophe and hadn't लिखते हैं. Had not, तो how will you write? Had and apostrophe T. तो hadn't आता है अगर आप इसको नेगेटिव में लिखना चाह रहे हो या लिखते हो. That is had not. और जब इंट्रोगेटिव होगा आपको पता है had पहले आ जाता है, then the subject and then the later part of the sentence. Now uses क्या है past perfect tense के. We usually use the past perfect to make it clear which action happened first. Always remember जो एक्शन हो चुका है फर्स्ट में जो हुआ है वो हमें पता चलता है. सो हम उस समय उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं क्योंकि हम पास्ट की स्टोरीज बता रहे हैं. तो जब पास्ट के स्टोरीज में एक के बाद एक इंसिडेंट्स आते जाते हैं तो दोज विच हैव हैपेंड अर्लियर वी यूज इट, वी राइट इट इन पास्ट परफेक्ट टेंस. It had snowed in the night, so the bus didn't arrive. See, it had snowed in the night. रात को बर्फ गिरी थी, so इसीलिए the bus didn't arrive. बस नहीं आई. ये एक्शन फर्स्ट में हो चुका है और इसीलिए उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कंसिक्वेंसेस है या सेकेंड एक्शन जो है वो ये है. तो फर्स्ट एक्शन वी हैव रिटन इन द पास्ट परफेक्ट फॉर्म. Something that started in the past and continued up to another action or time in the past. तो the past perfect tell us how long. अगर कोई एक्शन वो पास्ट में स्टार्ट हो गया है और कंटिन्यू है तो वो हमें ड्यूरेशन बताता है कितने समय तक वो एक्शन चला. फॉर एग्जाम्पल, when he graduated he had been in London for 6 years. तो वो 6 सालों तक लंदन में था जब उसने ग्रेजुएशन किया. To talk about unreal thing in the past. कैसे? हम लोग जब विश करते हैं तो अनरियल हम लोग विश करते हैं. It's not always that our wish will come fulfilled or whatever we think it will be as we are thinking. So ये अनरियल सिचुएशन होती है जो कि थर्ड कंडीशनल इफ के साथ हम जब लिखते हैं. इफ आई हैड नोन यू वर इल, यदि मुझे पता होता कि तुम बीमार हो, आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुम्हारे यहाँ जरूर जाता तुमसे मिलने. यदि मुझे पता होता. फर्स्ट, इफ आई हैड नोन यू वर इल, तो यहाँ पे आपने देखा हैड नोन पास्ट परफेक्ट का हमने यूज किया. आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुम्हारे पास जरूर जाता. सो नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट या परफेक्ट, क्योंकि हम सिंपल पास्ट में भी बोलते हैं, हम पास्ट परफेक्ट, लेकिन कब बताना है, कब ये करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट, व्हेन टू यूज पास्ट परफेक्ट. We use simple past if we give past events in the order in which they occurred. जब हम past events को एक सूत्र में बताते हैं, एक chronologically बताते हैं और एक order में बताते हैं जैसे जैसे वो घटित हुए हैं, then that is simple past. However, when we look back from a certain time in the past to tell what had happened before, we use past perfect. अब suppose when I was in school, ये एक certain आपका एक point है, आपको स्कूल के बारे में बता रहे हो. When I was in school, that is simple पर I had been taught by this, जो भी आपके सर है, प्रोफेसर, जो भी आपके टीचर है, इतने सालों तक. तो आपने एक पर्टिकुलर from a certain time in the past to tell what had happened before. तो उस पर्टिकुलर इवेंट के पहले क्या हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में बताओगे. Jenny got up at 7. This is simple past. Before her 6th birthday,
जेनी हैड नेवर बीन टू अब्रॉड। देखो, बिफोर हर 6th बर्थडे, अपने 6वें बर्थडे के पहले तक जेनी हैड नेवर बीन टू अब्रॉड, वो कभी विदेश नहीं गई। तो हैड नेवर बीन, हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक सर्टेन इंसिडेंट है, ये एक सर्टेन पीरियड है, टाइम है, बिफोर हर 6th बर्थडे। तो उसके पहले की हम बात बता रहे हैं, तो वो आप पास्ट परफेक्ट में बताओगे। नाउ सिग्नल वर्ड्स क्या क्या है? फर्स्ट और देन, सिंपल पास्ट, राइट? ऑलरेडी, अप टू देन, बिफोर दैट डे, आफ्टर। तो देखो यहाँ पर आफ्टर द फैमिली हैड ब्रेकफास्ट दे वेंट टू द जू। जब उन्होंने, फैमिली ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, वो जू गए। तो इस तरह से हमने देखा, आपने पास्ट परफेक्ट को यूज किया। नाउ ये सब है सिंपल पास्ट। फर्स्ट, देन इट हैपेंड, राइट? फर्स्ट ही अराइव्ड, ठीक है? ऑलरेडी ही हैड डन दिस, राइट? बिफोर दैट डे इट हैपेंड। तो इस तरह से आप देख रहे हो सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। इफ आफ्टर इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब है, द वर्ब बिलोंग्स टू द न्यू एक्शन एंड इज देयरफॉर सिंपल पास्ट। कैसे? आफ्टर हर विजिट टू द जू, देखो आफ्टर हर विजिट टू द जू, या आफ्टर के बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब। आफ्टर हर विजिट टू द जू जेनी वॉज एग्जॉस्टेड, जब वो जू गई उसके बाद वो काफी थक गई। शी वॉज एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर जेनी को हमने सिंपल पास्ट में लिखा, क्योंकि ये इसका रिजल्ट बता रहा है इस एक्शन को करने के बाद क्या हुआ जेनी के साथ, वो थक गई, राइट? तो दिस इज व्हाट, आफ्टर हर विजिट टू द जू देन जेनी, दैट इज द सब्जेक्ट, then verb was exhausted. Next, depending on the situation, when can be used with simple past or past perfect. When को हम simple past में भी यूज कर सकते हैं, past perfect में भी। कैसे? When Jenny saw the elephant, she was amazed. जैसे जेनी ने एलिफेंट्स देखा, वो बहुत अमेज्ड हो गई, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तो ये क्या हुआ? सेम टाइम में दोनों एक्शन हुए, तो सिंपल पास्ट। देखा उसने और वो बहुत अमेज्ड हो गई। When Jenny had seen the elephant, she wanted to see the giraffe. When Jenny had seen the elephants, she wanted to see the giraffe. लेकिन उसके पहले वो एलिफेंट को देख चुकी थी, फिर वो जिराफ देखना चाहती थी। तो when Jenny had seen the elephants, तो वो past perfect में होगा। The action about the time, that particular time is what Jenny wanted to see the giraffe, but इसके पहले that you will have to write in past perfect. Now second action happened after the first action had been completed. Next, if the action after before is a new action, use simple past. If the action after before started and not completed before a certain time in the past, तो use past perfect. So आप जब अपने अतीत के बारे में बात कर रहे हो, जब आप कोई कहानी सुना रहे हो, जब आप कोई इंसिडेंट सुना रहे हो, ऐसा बहुत बार होगा कि बिफोर आएगा, तो बिफोर के बाद नया एक्शन शुरू होता है, और बिफोर के पहले यदि वो जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम वहां पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। Jenny had read a lot about elephant before she went to the zoo. तो had read a lot. Jenny went to the zoo before she had finished reading. तो नया एक्शन क्या है आपका? Jenny went to the zoo before she had finished reading her new book about elephant. तो आपने यहाँ देखा she had finished, यहाँ पास्ट परफेक्ट हमने लिखा। तो इस तरह से always remember when there is a new action started and before that you are going to say something about the action, then you will have to use the past perfect. Now some exercises. He not be to Cape Town before 1997.
सबसे अच्छी बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं है हैज लगाएं या हैव लगाएं, सिर्फ हैड लगाना है। तो he had not been to Cape Town before 1997. had been not है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो hadn't been। आपको मैंने लिस्ट दिखाई थी। When she went out to play, she hadn't already or she hadn't done already her homework. She had, see, when she went out to play, she had already done her homework। क्योंकि verb क्या है, do है, तो इसका past participle form क्या आएगा, done आएगा। तो when she went out to play, she had already done her homework. My brother ate all of the cake that our mom make is the verb, तो इसका past participle form है made, my mom had made। Now the doctor took off the plaster that he had put on 6 weeks before. Answer is all given, and so I am saying this, the answers, I am saying this. The waiter brought a drink that had not been ordered, right? See, he had not been to Cape Town before 1997. When she went out to play, she had already done her homework. My brother ate all of the cake that our mom had made. The doctor took off the plaster that he had put on 6 weeks before. The waiter brought a drink that had not ordered. इस तरह से हमने देखा कैसे हमने पास्ट परफेक्ट को यूज किया, क्योंकि जो हमने ऑर्डर नहीं दिया, दैट आई हैड नॉट ऑर्डर, ये वो लेकर आया, उसके पहले का एक्शन है। हमने तो ऑर्डर नहीं दिया था, फिर भी वो लेकर आया, राइट। और वो जो प्लास्टर है वो 6 वीक पहले लग चुका था, आज डॉक्टर ने उसको उतारा है, तो द डॉक्टर टुक ऑफ द प्लास्टर। आज मीन्स पास्ट के जो इंसिडेंट है, पास्ट का जो टाइम है, उसमें उसने उतारा। तो दिस इज द रिसेंट पास्ट एंड दिस इज द डिस्टेंट पास्ट। सो फॉर डिस्टेंट पास्ट वी यूज पास्ट परफेक्ट। So what have you learned today? We have learned a very interesting part of grammar. In this past perfect helps you to write about your incidents, your past incidents that had happened before, and you can express all your past in a very perfect way. To go through the session again and again, revise it, and in the next session I will be here with some new chapters. Thank you.